Very good morning, students, and most welcome again in online classes. So it's time to have the next chapter from Snapshots. It's about chapter number 5, students, just after the completion of Albert Einstein High School. Chapter number 5, okay, in front of you. Mother's Day by J.B. Priestley. Mother's Day by J.B. Priestley. So here you have your chapter number 5, Mother's Day. In this chapter, students, there is a character named Mrs. Annie Pearson. Okay. In this chapter, Mother's Day, chapter number 5, in Snapshots by J.B. Priestley. In this chapter, there is a character, Mrs. Annie Pearson. Mrs. Annie Pearson, who is not treated well by her husband or children. Okay, and with the help of her neighbor, Mrs. Fitzgerald, and black magic, she stands up for her rights. I repeat that again. In this chapter, there is a prominent character, a famous character in this chapter, and her name is Mrs. Annie Pearson. She is not treated well by her children and husband, by her husband and children, and with the help of her neighbor, Mrs. Fitzgerald, and black magic, she stands up for her right. अपने पड़ोसी की सहायता से, और पड़ोसी का नाम है, पड़ोसन का नाम है मिसेस फिtzgerald, और ब्लैक मैजिक की सहायता से वो जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है. Because she is not treated well by her children and by her husband, so that's why she stands against them with the help of her neighbor, Mrs. Fitzgerald, and black magic. So let's have a chapter without wasting your time, students. It's the second last chapter in this book, Snapshots. After this, we'll have only the last one. Okay. So let's have your second last chapter of this book, students, as per the current syllabus, okay, which is prescribed by, or which has been prescribed by CBSE in this session, students. So lesson number 5, Mother's Day by J.B. Priestley. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother. Don't forget that it's not the story, it's a play. नाटक है, okay, which will be performed on stage. जो stage पर perform होगा. Mother's Day by J.B. Priestley. The following day is a humorous portrayal. The following play is a humorous portrayal. जो निम्नलिखित नाटक है, और नाटक का नाम है आपके सामने है यहाँ पर, Mother's Day by J.B. Priestley is a humorous portrayal. एक humorous portrayal है, एक हास्यास्पद चित्रण है, एक हास्यास्पद चित्रण है of the status of the mother in a family. परिवार में माँ की स्थिति का, परिवार में माँ की स्थिति का एक हास्यास्पद जो है चित्रण है, मतलब एक हंसी की कगार पर जो माँ की हालत होती है परिवार में, उसका एक ह्यूमरस पोर्ट्रेल यहाँ पर है, एक हास्यास्मत यहाँ पर एक चित्रण जो है किया गया इस नाटक में. इंटायरली इस प्ले, एक नाटक यहाँ पर आपके सामने है. Let's read on to see how Mrs. Pearson's family reacts. चलो पढ़ते हैं इसको, ये देखने के लिए कि किस प्रकार से मिसेस पियर्सन्स की फैमिली रिएक्ट करती है, बर्ताव करती है, when she tries to stand up for her own rights, जब वे अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की कोशिश करती है. चलो देखते हैं माँ की हालत परिवार में. चलो देखते हैं स्टेटस ऑफ मदर इस प्ले में. लेट्स रीड ऑन टू सी, चलो पढ़ते हैं ये बात देखने के लिए, कि चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इस प्ले को पढ़ते हैं ये बात देखने के लिए. हाँ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स, किस प्रकार से मिसेस पियर्सन की फैमिली जो है रिएक्ट्स करती है, व्यवहार करती है, बर्ताव करती है. When she tries to stand up for her own rights, जब वह अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की कोशिश करती है, तो उसकी फैमिली जो है रिएक्ट कैसे करती है, बर्ताव कैसे करती है. So in this chapter, students, we have 5 major characters. The characters are Mrs. Annie Pearson. About her, we talked about as a leading prominent character. Mrs. Annie Pearson, the first one. Second one is George Pearson. उनके husband है. The husband of Mrs. Annie Pearson is Mr. George Pearson. Doris Pearson, he is Doris Pearson. यहाँ पर उनकी बेटी है, किसकी? Mrs. Annie Pearson, Mr. George Pearson की Doris Pearson. Doris is a girl. Cyril, Cyril, C-Y-R-I-L, Cyril Pearson, actually he is a boy. He is a son of Mr. George Pearson and Mrs. Annie Pearson. And there is another character, the last one, Mrs. Fitzgerald. It's not Fitzgerald, it's Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald, okay, she is a neighbor of Mrs. Annie Pearson, and she knows how to perform black magic. और उसे पता है black magic कैसे perform करते हैं. So these are the characters, and the characters are Mrs. Annie Pearson, George Pearson, Doris Pearson, Cyril Pearson, and Mrs. Fitzgerald. Okay.
The action takes place in the living room of the Pearson's house in London suburb. The action takes place in the living room of the Pearson's house. और ये जो action है, जो भी यहाँ पे नाटक होगा, जो कुछ भी यहाँ पर चलेगा, वो मिसेस पियर्सन के घर में है. कहाँ पर? मिसेस पियर्सन के घर में, लिविंग रूम में, इन लंदन सबब, लंदन के उपनगरीय क्षेत्र में. कहाँ पर? लंदन के उपनगरीय क्षेत्र में मिसेस पियर्सन के घर पर, लिविंग रूम में सब कुछ यहाँ पर एक्शन होगा. टाइम है द प्रेजेंट, अभी का समय है, वर्तमान समय का. डोंट फॉरगेट दैट दिस प्ले विल परफॉर्म और इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज. स्टेज पर होगा, नाटक है, प्ले है, स्टोरी नहीं है. So scene number one we have here the living room of the Pearson's family. Scene number one, the living room of the Pearson family. Miss Pearson family का living room, guest room यहाँ पर है. आफ्टरनून का समय है, दोपहर का समय है. Okay, it's just the first page. It's just about the introduction. You can say that of living room. Nothing will be asked in your exam at all from here. It's important just to know about the living room of Pearson's family. The questions actually are asked from the dialogue, okay, between the two personalities, which is very prominent here. Two or more than two personality. The living room of the Pearson family, scene number one, we have here the living room of Pearson family. Pearson family का living room यहाँ पर है, guest room है, afternoon का time है. It is a comfortably furnished. जो living room है comfortably furnished है, मतलब comfortably मतलब बड़ा आरामदायक और सुसज्जित है. जो भी सारी असेंशियल कम्युनिटीज़ होती है, जो भी सारा सामान चाहिए कंफर्ट के लिए, आराम के लिए, यहाँ पर सब अवेलेबल है. इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड. रूम जो है, लिविंग रूम जो है, कंफर्टेबली फर्निश्ड है, बड़ा आरामदायक है, फर्निश्ड है, सुसज्जित है. मच लिव्ड इन रोम इन अ स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटैच्ड विला. और एक और से पृथक भवन में, लिविंग रूम जो एक और से पृथक है भवन इसका, लिविंग रूम का, इस मिसेस पियर्सन फैमिली का जो घर एक और से पृथक है, एक और से अलग है, और सब अर्बन में है, सब अर्बन में, उपनगरीय क्षेत्र में है, एक छोटे से उपनगरीय क्षेत्र में है. और जो लिविंग रूम है काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी फर्निश्ड है, बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही सुसज्जित है. असेंशियल कम्युनिटी जो भी होनी चाहिए कंफर्ट के लिए, लाइक चेयर्स, टेबल, सोफा, कर्टन, विंडो, एवरीथिंग. ओके, द लिविंग रूम हैज़. नेक्स्ट, इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज. अगर आवश्यक हो तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. अगर ज़रूरत हो तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल किया जा सकता है. इफ नेसेसरी ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग रूम मिसेस पियर्सन फैमिली. इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज. अगर आवश्यक हो तो केवल एक ही दरवाज़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. बट इट इज़ बेटर विथ टू. लेकिन अच्छा होगा दोनों दरवाजे इस्तेमाल किए जाएँ. लेकिन अच्छा है कि दोनों ही दरवाजे इस्तेमाल किए जाएँ. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर. एक दरवाजा जाता है लेफ्ट लीडिंग, वन अप लेफ्ट ऊपर की तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन में. लीडिंग टू द फ्रंट डोर, वो दरवाजा जाता है फ्रंट डोर की तरफ. कहाँ जाता है? फ्रंट डोर, मेन दरवाजे की ओर. एंड द स्टेयर्स, और सीढ़ियों की ओर. एंड द अदर इन द राइट वॉल, और दूसरा दरवाजा जाता है राइट वॉल की ओर, सीधी तरफ, राइट डायरेक्शन में जो वॉल है वहाँ पे, वह वॉल लीडिंग टू द किचन, जो दीवार की ओर जाती है, वह वॉल और वह दरवाजा, सेकेंड डोर जो किचन तक जाता है. एंड द बैक डोर, और बैक डोर तक जाता है. देयर कैन बी अ मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल. और लेफ्ट वॉल में जो है वहाँ पर एक मुस्लिन कवर्ड विंडो हो सकती है, मतलब वहाँ पर है. एक्चुअली कैन भी लिखा है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर है. और जो लेफ्ट यहाँ पे लिखा है, देयर कैन बी मुस्लिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल. और लेफ्ट वॉल में जो है, लेफ्ट मतलब होता है राइट, लेफ्ट, बाएं दिशा में जो वॉल है. ओके, जो बाएं दिशा में जो वॉल है, लेफ्ट डायरेक्शन में जो वॉल है, वहाँ पर एक मुस्लिन कवर्ड विंडो हो सकती है, मतलब एक मखमली कपड़े की. मुस्लिन यहाँ पे लिखा है MUSLIN, मुस्लिम, मखमली, मलमल के कपड़े से, मखमली, मलमल के कपड़े से ढकी हुई एक विंडो वहाँ पर हो सकती है, वहाँ पर है. ओके, इसके बाद एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और पॉसिबली संभवतः राइट वॉल में वहाँ पर हो सकती है. टू भी द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल. और जो फायर प्लेस है वो कहाँ पर है? फोर्थ वॉल में, चौथी दीवार में है. फायर प्लेस का मतलब अग्निस्थल, जिसे हम लोग फायर प्लेस ही बोलते हैं, वैसे अंगीठी कानस बोलता है. अंगीठी कानस जहाँ पे अंगीठी लगाई जाती है, जहाँ पे फायर जलाई जाती है. देयर इज अ सेटी अप राइट, और राइट डायरेक्शन में क्या वहाँ पर? सेटी का मतलब होता है सोफा. क्या होता है? सोफा. तकिएदार बेंच है, मतलब तकिए लगे हुआ बेंच है, सोफा ही बोलते हैं उसे हम लोग. सेटी है वहाँ पर. एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट, और लेफ्ट डायरेक्शन में डाउन जो है आर्म चेयर वहाँ पर है. आर्म चेयर का मतलब हत्तेदार कुर्सी है. एंड वन डाउन राइट, और एक कुर्सी और है राइट डायरेक्शन में. अ स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स, और एक छोटी सी टेबल है 2 चेयर्स के साथ. दो चेयर्स वहाँ पे, और इधर साइड टेबल के दोनों तरफ चेयर लगी हुई है लिविंग रूम में.
ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, और टेबल कहाँ पर है, सेंटर में है, लिविंग रूम के सेंटर में टेबल पड़ी है, उसके दोनों तरफ क्या है, चेयर्स है। चेयर्स कैसी, आर्म चेयर्स है, आर्म चेयर्स है, नो ओनली चेयर्स आर देयर, अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स वहां पर है, ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर, टेबल सेंटर में है, टेबल कहाँ पर है, सेंटर में, उसके दोनों तरफ क्या है, चेयर्स है। एवरीथिंग इज इन लिविंग रूम, everything is in living room of Mrs. Pearson, family of Mrs. Pearson, that stand for comfort and furnished, that stand for comfort and furnished. The line we have read in the very first line, it is comfortably furnished, और living room कैसा है, comfortably furnished है, बहुत ही comfortably है, बहुत ही comfort है, बहुत ही आरामदायक है, और furnished है, सुसज्जित है। When the curtain rises, it is an afternoon in the early autumn, और जब autumn के महीने में, पतझड़ के मौसम में, दोपहर के समय में जब पर्दा उठता है, यहाँ पर है when the curtain rises, जब पर्दा उठता है, I told you that is all about the play okay is going to be held or will be play on stage पर होगा। when the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit। when the curtain rises, जब पर्दे उड़ते हैं, नाटक चलेगा ना पूरा का पूरा। when the curtain rises, जब पर्दे उड़ते हैं, it is an afternoon, समय है दोपहर का, प्ले में समय है दोपहर का, इन अर्ली ऑटम में, पतझड़ का मौसम जब शुरू होता है तब उसके प्रारंभ का समय है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज जो है भली प्रकार जो है देखा जा सकता है, जगमगा रहा है, लिट कर रहा है, जगमगा रहा है। मिसिस पियर्सन एट राइट, और मिसिस पियर्सन जो है पर्दा उठने के बाद दिखाई दिया, मिसिस पियर्सन कहाँ पर, राइट डायरेक्शन में बैठी हुई है, एंड मिसिस फिजरल एट लेफ्ट, और मिसिस फिजरल जो है लेफ्ट डायरेक्शन में बैठी हुई है। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट अ स्मॉल टेबल, और स्मॉल टेबल के दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट में दोनों बैठे हुए हैं, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजरल, ऑन विच आर 2 टी कप्स, इस टेबल पर 2 टी कप्स हैं, जो चाय के जो कप पड़े हुए हैं, एंड सॉसर्स, और सॉसर्स हैं, और प्लेट्स हैं। सॉसर स्टैंड फॉर प्लेट, स्टैंड्स फॉर प्लेट, सॉसर्स हैं, एंड द कार्ड्स विथ विच मिसेस फिजरल हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून, ओके दोनों बैठे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कर्टन उठा तब दिखाई दिया, टेबल के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आमने सामने बैठे हुए हैं, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, ऑन विच आर 2 टी कप्स, जिस टेबल पर 2 चाय कप हैं, 2 चाय के कप हैं, एंड सॉसर्स, और सॉसर्स हैं, प्लेट्स हैं, एंड द कार्ड्स, और कार्ड्स हैं उस टेबल पर, विथ विच मिसेस फिजरल हैज बीन टेलिंग, जिस कार्ड्स की सहायता से मिसेस फिजरल, वो इज अ नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन एंड नोज वेरी वेल अबाउट ब्लैक मैजिक, जो कि कार्ड्स की सहायता से, पत्तों की सहायता से जो है, कार्ड्स की सहायता से, हैज बीन टेलिंग, बता रही है मिसेस पियर्सन फॉर्च्यून, मिसेस पियर्सन के फॉर्च्यून के बारे में, मिसेस पियर्सन के भाग के बारे में, भाग्य के बारे में, लक के बारे में, फॉर्च्यून के बारे में। Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Pearson अपनी 40 साल की अवस्था में एक खुशमिजाज लेकिन चिंतित दिखाई देने वाली महिला है। Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. Mrs. Pearson जो अपनी 40 साल की अवस्था में pleasant, एक खुशमिजाज लेकिन चिंतित दिखाई देने वाली महिला, चिंतित रहती है। Mrs. Fitzgerald is older. जबकि मिसेस फिजरल कैसी है, ओल्डर है, बुजुर्ग है, हैवी और थोड़ी भारी है, एंड अ स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिल वाली है, एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और सिनिस्टर पर्सनैलिटी वाली है, मतलब डरावनी पर्सनैलिटी वाली, डेंजरस काइंड ऑफ वुमन शी इज, बिकॉज शी नोज द ब्लैक मैजिक वेरी वेल, और ब्लैक मैजिक इज नॉट गुड, ओके। So let's repeat the line again for all of you. The personalities, how the personality of these two ladies are. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman in her 40s. कि मिसेस पियर्सन जो अपनी 40 साल की अवस्था में एक खुशमिजाज, प्लेजेंट लेकिन वरिड लुकिंग वुमन है, बहुत ही चिंतित दिखाई देने वाली महिला है। मिसेस फिजरल इज ओल्डर, जबकि मिसेस फिजरल ओके वो इज नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन, ओल्डर है, हैवियर है, काफ़ी हैवी है, एंड अ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत दिल वाली है, एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और बड़ी डेंजरस पर्सनैलिटी वाली है, बड़ी भयानक, बड़ी खतरनाक व्यक्तित्व वाली महिला है मिसेस फिजरल। शी इज़ स्मोकिंग, वो स्मोक कर रही है, वो मिसेस फिजरल स्मोक कर रही है, धूम्रपान कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन दोनों महिलाओं की जो आवाज़ें बड़े शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग हो, मतलब
एक दूसरे के विरोधाभासी हो, एक की सॉफ्ट हो, एक की थोड़ी अलग हो, तभी नाटक में मजा आएगा, तभी प्ले का थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। शी इज स्मोकिंग, वह स्मोक कर रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव, दीज टू स्टैंड फॉर दीज टू लेडी, दीज टू वुमेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, कि इन दोनों की जो है शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइस होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट विरोधाभासी आवाजें होनी चाहिए। मतलब उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए मिसेस पीटरसन की, और मिसेस फिtzgerald की थोड़ी सी अलग आवाज होनी चाहिए, कुछ अलग अलग होनी चाहिए, तभी इंटरेस्ट आएगा प्ले में। मिसेस पीटरसन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, और मिसेस पीटरसन जो इस नाटक में, मिसेस पीटरसन जो बड़ी लाइट, बहुत ही हल्की सी आवाज, बहुत हल्की, फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन, घबराई हुई आवाज में बात कर रही है। लाइट का मतलब हल्की आवाज में, और फ्लरिड का मतलब होता है घबराया होना, टेंशन में होना। मिसेस पीटरसन जो है एक बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्की और घबराई हुई टोन में बात कर रही है। विद अ टच ऑफ suburban cockney perhaps, विद अ टच ऑफ suburban cockney perhaps, और उनकी जो टोन है, उस टोन में जो डायलेक्ट है, उनकी जो टोन है, उस टोन में जो डायलेक्ट है वो कॉकनी का है। कॉकनी स्टैंड फॉर द डायलेक्ट ऑफ लंदन। लंदन का जो डायलेक्ट होता है, वहाँ की जो बोली है, डायलेक्ट स्टैंड फॉर बोली, है ना। बोली जो होती है, बोलियाँ अलग अलग होती हैं, और जो क्षेत्रीय बोली होती है, जो रीजनल जो डायलेक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और मिसेस पीटरसन की जो वॉइस है, जो टोन है, उसमें कॉकनी का जो है फिलहाल डायलेक्ट यूज हो रहा है, मतलब जो उपनगरीय क्षेत्रों में इस्तेमाल होती है। ओके, नॉट द अर्बन सिटीज, सब अर्बन, लंदन के सब अर्बन एरियाज में जो कॉकनी डायलेक्ट यूज होता है, जो एक कॉकनी स्टैंड फॉर लंदन डायलेक्ट, लंदन का डायलेक्ट, लंदन की बोली वहां पर कैसी है, वो जो है टच मिसेस पीटरसन की आवाज में देखने को यहाँ मिल रहा है। इस तरह से बोल रही है। लंदन के उपनगरीय क्षेत्र में जो डायलेक्ट बोली आती, कॉकनी बोली आती, यहाँ पर वो यूज कर रही है मिसेस पीटरसन। हमारे यहाँ भी अलग अलग बोलियाँ, डायलेक्ट्स मिलते हैं। आप पंजाब चले जाओ, वहाँ पे अलग डायलेक्ट मिलेगा आपको। और when they speak in Hindi, they will speak just like they will speak with the dialect of Punjabi. हिंदी बोलेंगे तो पंजाबी लगती है। If you go in Haryana, then you will find different dialect there, different accent there, different pronunciation of the same language there. Maybe you can speak with those people in Hindi language, but their dialect, their accent would be quite different from the general one. उनका अलग होगा। You can easily find out even India too. इंडिया में तो पूछो मत, इतने डायलेक्ट मिल जाएंगे, कोई इसकी हद ही नहीं है। So let's say कॉकनी का बात हमने किया, मिसेस पीटरसन का आया, मिसेस फिtzgerald विद अ डीप वॉइस। और मिसेस फिtzgerald जो कैसे बात कर रही है, डीप वॉइस से बात करती है। मिसेस फिtzgerald की आवाज़ कैसे, डीप वॉइस है, बड़ी गहरी आवाज़ है, हम कह सकते हैं बहुत ही भारी है, गहरी आवाज़ है, रेदर आयरिश परहैप्स। और उनकी जो आवाज़ है वो शायद आयरिश की तरह है। कैसी आयरिश है, मतलब आयरलैंड का, आयरिश स्टैंड फॉर आयरलैंड, आयरलैंड का जो वहाँ पे डायलेक्ट यूज होता है, वहाँ पे जो बोली यूज होती है, उनकी कुछ उस तरह से है। अब अलग अलग डायलेक्ट हो गए, अलग अलग आवाज़ हो गई, अलग अलग बोलियाँ हो गई। तो लेट्स हैव द चैप्टर विद डिफरेंट डायलेक्ट। इसका कोई यूज़ नहीं है इतना चैप्टर में, फिर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, उनकी आवाज़ को अलग दिखा के पेश कर दिया आप लोगों के डिफरेंट डायलेक्ट्स के साथ। लेट्स से मिसेस, अब डायलॉग राइटिंग चलेगा, नॉट डायलेक्ट, डायलॉग राइटिंग यहाँ पे चलेगा दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय के लिए, अप टू द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट। मिसेस फिtzgerald कहती है, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को कलेक्ट करके, कार्ड्स को कलेक्ट करते हुए मिसेस फिtzgerald बोलती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन से, दैट ऑल आई कैन टेल यू, ये वो सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मतलब इतनी सारी बातें ये हैं जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मिसेस पीटरसन से बोलती है मिसेस फिtzgerald, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, कार्ड्स को कलेक्ट करके, कार्ड्स को कलेक्ट करके मिसेस फिtzgerald मिसेस पीटरसन से बोलती टू मिसेस पीटरसन, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, की सारी बातें हैं जो तुम्हें बता सकती हूँ। मिसेस पीटरसन, ये वो सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। कुड बी अ गुड फॉर्चून, एक अच्छा भाग, एक अच्छा भाग्य, कुड बी अ बैड वन, और एक दुर्भाग्य भी हो सकता है। इन बातों में एक अच्छा भाग्य और एक दुर्भाग्य भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब ये सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड है। जो बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड है कि तुम्हारा लक जो है गुड होगा या फिर बैड होगा, तुम्हारा फॉर्चून जो है गुड होगा या फिर बैड होगा। मेक अप योर माइंड, अपना मन बना लो, अपने आप को रेडी कर लो, एंड देयर इट इज, और ये लो, और ये लो। मिसेस पीटरसन ने कहा, यस थैंक यू, हाँ धन्यवाद तुम्हारा। मिसेस फिtzgerald, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं तुम्हारी काफ़ी कृतज्ञ हूँ। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर के, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, कि बगल में, अपनी बगल में एक रियल
फॉर्चून टेलर को पा करके बड़ा वंडरफुल है, बड़ी अच्छी, अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शानदार सी बात है कि हमारे पड़ोस में, हमारे नेक्स्ट डोर में, बगल में हमारे एक रियल फॉर्चून टेलर रहती है। मतलब इस बात को लेके वो वंडरफुल वर्ड यूज़ करी, बहुत ही अच्छा है कि हमारे पड़ोस में, हमारे पास में एक जो है एक रियल फॉर्चून टेलर रहती है। इस चीज़ को लेके वंडरफुल कह रही है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुमने ये ईस्ट नेशन से सीखा? ईस्ट स्टैंड फॉर द ईस्टर्न नेशंस। क्या तुमने ये जो सब कुछ सीखा है, फॉर्चून को बताने वाली बातें, फॉर्चून को बताने वाला मैजिक, क्या तुमने ईस्टर्न नेशन से सीखा है? क्या तुमने पूर्वी देशों सीखा है क्या? मिसेस पियर्सन ने पूछा मिसेस फिजरल से, और जवाब दिया मिसेस फिजरल ने, एंड शी रिस्पॉन्ड्स मिसेस फिजरल, आई डिड। कहा कि हाँ मैंने सीखा था, मैंने ईस्टर्न नेशन से सीखा था। 12 years I had of it, 12 साल तक सीखा था। कितने साल तक? 12 वर्षों तक मैंने सीखा था ब्लैक मैजिक। विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। और 12 years I had of it, 12 years I had of it, 12 वर्षों तक मैंने सीखा था। विद माई ओल्ड मैन, मेरे ओल्ड मैन का मतलब मेरे पति के साथ। वो इज़ ओल्ड मैन, ओल्ड मैन उसके लिए उनके हस्बैंड ही होंगे, मेरे हस्बैंड के साथ सीखा था। राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, वे तब तक जो है प्रमोशन लेते लेते क्या बन गए थे? लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए थे। क्या बन गए थे? लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बन गए थे। ये बात बता रही है मिसेस फिजरल। He learnt a lot. He learnt a lot. उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा था। And I learnt a lot more, और मैंने बहुत ज़्यादा सीखा था। But will you make up your mind now? लेकिन अब तुम क्या अपने आप को तैयार करोगी? अब क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओगी? मिसेस पियर्सन, डियर मिसेस पियर्सन, प्रिय, बट पुट योर फुट डाउन। पुट योर फुट डाउन का मतलब है सख्ती से पेश आओ। पुट योर फुट डाउन का मतलब है कि सख्ती से पेश आओ, अपने पैर नीचे कर लो। ये वाली बात यहाँ पर नहीं। पुट योर फुट डाउन का मतलब है कि सख्ती से पेश आओ, स्ट्रिक्ट एक्शन लो, स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो करो, सख्ती से पेश आओ। दीज काइंड ऑफ लाइन्स बेसिकली are being presented by Mrs. Fitzgerald to Mrs. Pearson. Put your foot down, कहा कि अपने आप सख्ती से पेश आओ, स्ट्रिक्टली काम लो। Once and for all, कि एक बार सख्ती से काम लो सबके लिए। And be the mistress of your own house, और अपने घर की जो है मालकिन बन जाओ। Put your foot down, सख्ती से काम लो, स्ट्रिक्टली एक्शन लो, और अपने घर की जो है मालकिन बन जाओ। And the boss of your own family, और अपने परिवार की जो है बॉस बन जाओ, अपने परिवार की बॉस बन जाओ। यहाँ पे गाइडलाइंस दी जा रही है मिसेस फिजरल के द्वारा। मिसेस फिजरल के द्वारा गाइडलाइंस दी जा रही है मिसेस पियर्सन को कि पुट योर फुट डाउन, सख्ती से काम लो, और अपनी फैमिली की जो है मिस्ट्रेस और बॉस बन जाओ। मिसेस पियर्सन ने कहा, मिसेस पियर्सन सैड, स्माइलिंग एपोलोजेटिकली, मतलब थोड़ी क्षमा याचना की दृष्टि से मुस्कुराती हुई कहती है, दैट्स ईजियर सेड देन डन, कि ये कहना आसान है करने के बजाय, कि करने के बजाय कहना बड़ा आसान है। क्या? मिस्ट्रेस बनना, बॉस बनना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, स्ट्रिक्ट बिहेवियर शो करना, ये कहना आसान है करने के बजाय। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम, इसके साथ या इसके अलावा वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ दैम, मतलब मुझे उनका शौक नहीं है, मतलब मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ दैम, इसके साथ वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। ओके, इसके अलावा मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, यहाँ तक कि वो थॉटलेस हो और सेल्फिश भी, मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स भले ही थॉटलेस हो, भले ही विचारहीन हो, चिंतनहीन हो, या फिर स्वार्थी हो, लेकिन मेरे लिए वो प्रिय हैं। दे डोंट मीन टू बी, मतलब वो बुरे नहीं हैं, वो स्वार्थी नहीं है, बुरे नहीं हैं। मिसेस फिजरल ने कहा, मिसेस फिजरल सेड, और रिस्पॉन्डिंग, कटिंग इन, उसकी बात बीच में काटते हुए, मिसेस पियर्सन की बात बीच में काटते हुए मिसेस फिजरल ने कहा, मे बी नॉट, कि शायद ना हो ऐसा, बट इट वुड बी बेटर फॉर दैम इफ दे लर्न्ड टू ट्रीट यू प्रॉपरली। मे बी नॉट, कि शायद ऐसा ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम, लेकिन उनके लिए बात अच्छी होगी, उनके लिए बात सही होगी। इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ सही प्रकार से व्यवहार करना सीखा होता तो उनके लिए बात अच्छी होगी। मतलब वो तुम्हारे साथ सही प्रकार से ट्रीट करें, बिहेव करें, उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए बेटर होगा। मिस्टर पियर्सन सेड, यस आई सपोज इट वुड बी, हाँ ऐसा मैं सपोज करती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ, ऐसी मैं कल्पना करती हूँ कि ऐसा होगा। इन अ वे, इस तरीके से, किस तरीके से, कि मैं अगर स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, अगर मैं स्ट्रिक्ट बिहेवियर करूँ, इस तरीके से ऐसा हो सकता है, आई सपोज। मिस्टर फिजरल रिस्पोंडेंट सेड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर, तुम्हारे हस्बैंड,
तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। नो डाउट अबाउट इट एट ऑल, इसके बारे में कोई संदेह ही नहीं है। वो इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, वो इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि बिगड़ने से किसका भला होता है, बिगड़ जाने से किसका भला होता है, बिगड़ जाने से किसका भला होता है। वो इज द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि बिगड़ जाने से भला किसका होता है, ग्रॉन मैन का, वयस्क व्यक्ति का, लेड का, लड़के का, और गर्ल या लड़की का, नोबडी, किसी का भी नहीं होता कि हम बिगड़ जाएं। ये बिगड़ जाने से किसका भला होता है, ना तो वयस्क व्यक्ति का, ना ही लड़के या लड़की का, नोबडी, किसी का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। मिसेस फिजरलैंड एक्सप्लेनिंग, यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, तुम्हें लगता है, तुम सोचती हो कि जब तुम उनके पीछे पीछे भागती हो सभी पूरे दिन भर, तो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बढ़िया है। यू थिंक इट डज देम गुड, कि उनके लिए भला होगा, उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा। व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, जब तुम उनके पीछे पीछे पूरे दिन भर पूरे समय भागती रहो, मतलब तुम उनके पीछे पीछे भागती रहो, उनके पीछे पीछे सभी समय पूरे समय तक भागती रहो, तो उनके लिए अच्छा होगा, मतलब उनके पीछे पीछे भागो तो उनके लिए अच्छा होगा। टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ यू वर द सर्वेंट, और उनके ऑर्डर्स को इस तरह से लेना कि मानो तुम नौकरानी हो, नौकर हो, इन द हाउस, घर के अंदर। स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्व्स, और हर रात को घर पर रुकना जबकि वो बाहर जो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और हर रात को घर पर रुकना जबकि वो बाहर जो है एंजॉय करने के लिए जाते हैं। उनके लिए नौकर की तरह काम करना, उनके ऑर्डर्स को नौकर की तरह एक्सेप्ट करना, उनके पीछे पीछे पूरे दिन भर भागना, और पूरी रात जो है घर पर रहना जबकि वो बाहर घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए बेटर है क्या। नेवर इन ऑल योर लाइफ, कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं है। इज द ruin ऑफ them एज वेल एज यू, ये उनकी तो बर्बादी है, तुम्हारी भी है। ruin का मतलब उन्हें बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी, और तुम्हें भी कर देगी। इट्स द ruin ऑफ them, ये उनका विनाश है, उनकी बर्बादी है, और तुम्हें भी इस तरह से बर्बाद कर देगी, एज वेल एज यू। हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, कि पतियों को, पुत्रों को और बेटियों को जो है, पत्नियों का, एंड मदर्स और माओं का जो है ध्यान रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, उन्हें आदेश नहीं देने चाहिए, और उन्हें डर्ट की तरह, मतलब मिट्टी की तरह, गंदगी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। जो डॉटर्स हैं, हस्बैंड्स हैं, सन्स हैं, उन्हें अपनी वाइफ्स का, हस्बैंड्स को वाइफ का, डॉटर्स एंड सन्स को अपनी माँ को जो है नोटिस करना चाहिए, और उन्हें ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए, और उनके साथ जो है डर्ट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें डर्ट नहीं लेना चाहिए, ऐसा मिट्टी, ऐसा गंदगी नहीं लेना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे मत बताना, एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, एंड डोंट टेल मी, मुझे मत बताना, यू डोंट नो, कि तुम नहीं जानती कि मेरा कहने का मतलब क्या है। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे मत बताना ये चीज़ कि तुम नहीं जानते कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और मेरे कहने का मतलब क्या है तुम नहीं जानते, मुझसे ये मत बोलना। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, कि जितना तुम मुझे बता चुके हो ना, उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ। फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, जितना तुम मुझे बता चुकी हो उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ। मिस्टर पियर्सन सैड ड्यूबियसली का मतलब संदेहास्पदात्मक दृष्टि से कहा, थोड़ा डाउट हो के बोला। आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट का मतलब मैं उन्हें हिंट देती रहूँगी, मैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देती रहूँगी, मैं उन्हें संकेत देती रहूँगी, उन्हें इंस्ट्रक्शन देती रहूँगी। मिसेस फिजरलैंड रिस्पॉन्ड, हिंट, संकेत दोगी, उन्हें इंस्ट्रक्शन दोगी। इट्स मोर दैन हिंट्स योर फैमिली नीड्स, कि तुम्हारे परिवार को जो हिंट से ज़्यादा की ज़रूरत है, तुम्हारी फैमिली को जो हिंट से ज़्यादा की ज़रूरत है, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को, तुम्हारी फैमिली को हिंट से, संकेतों से, इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा की ज़रूरत है। मिसेस पियर्सन सैड ड्यूबियसली अगेन इन अ डाउटफुल मूड, आई सपोज इट इज़, मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा ही है, बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, लेकिन किसी भी अनप्लीजेंटनेस से, किसी भी दुखद बात से मुझे जब बहुत ही नफरत है, कुछ गलत हो, कुछ अशुभ सा हो, कुछ अनप्लीजेंट हो घर में, मुझे उससे नफरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और बड़ा मुश्किल है कहाँ से शुरू करूँ। एंड इट्स टू हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और बड़ा मुश्किल है कहाँ से मैं शुरू करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम, बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, कि मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूँगी, मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ,
टू हैव इट आउट, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए विद दैम, उनके साथ। किनके साथ? मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, किसी तरह से मुझे पता नहीं कि शुरुआत कैसे करूँ। मैं मेंटली जो प्रिपेयर तो कर रही हूँ अपने आप को, मेंटली मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। द लाइन इज आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, कि मैं जो है मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन समहाउ मुझे पता नहीं कि मैं शुरुआत कैसे करूँ। सॉल्यूशन निकालने की, बिहेवियर को ठीक करने की सॉल्यूशन निकालने की, मैं शुरुआत कैसे करूँ। शी ग्लैंसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक, वह अपनी घड़ी की तरफ घूर के देखती है। ग्लैंस का मतलब नजर